بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری موبائل کی دکان کے بالکل سامنے ایک پارلر کھلا تھا جس کا نام ایڈل بیوٹی پارلر تھا۔ بالکل ساتھ ہی بازار تھا، لوگوں کا ایک سمندر جو روزانہ میری دکان کے آگے سے گزرتا تھا، اور بیوٹی پارلر کی مالکہ جب وہاں سے گزرتی بہاروں کے بادلوں کی طرح برستا تھا۔ پھر اس پر قیامت اس کا فیشن ڈھاتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ فیشن میں ماڈلنگ کرتی ہو، اور پورے ملک کے ڈیزائنرز اس کے گھر آ کر نت نئی ملبوسات اسے دیتے ہوں کہ انہیں پہن کر ملبوسات کی نمائش کرو۔ جس جگہ سے وہ گزرتی دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے دیکھتی رہ جاتی، من چاہے صبح اس حسین ملکہ کی ایک جھلک دیکھنے کو بے چین آتے اور پارلر کھلنے کے منتظر رہتے۔ اس کی ذات میں ایسی کشش تھی کہ میں بھی منتظر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ کام کرنے کے سلیقے کی وہ ماہر تھی۔ کچھ دنوں میں ہی اس کا پارلر چل نکلا اور خوب رش رہنے لگا۔ چونکہ پارلر میری دکان کے بالکل سامنے تھا، اس لیے کبھی کبھار دیدار حسن نصیب ہو جاتا۔ جس دن مجھے اس مالکہ کا دیدار حسن نصیب ہو جاتا، میرا سارا دن مسرور گزر جاتا۔ میں چونکہ اس کی طاق میں رہتا، لہٰذا میری نظریں کبھی کبھار دو چار ہو ہی جاتی تھیں۔ اب تو وہ بھی اکثر میری دکان پر آنے لگی تھی، کبھی بیلنس ڈلوانے کے لیے اور کبھی موبائل لینے کے لیے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میرا دل چاہتا کہ وہ سارا دن میرے ساتھ گزارے۔ اسے نئے موبائل رکھنے کا بہت شوق تھا۔ مارکیٹ میں جو بھی موبائل کا نیا ماڈل آتا تو میں اس کے نمبر پر میسج کر دیتا۔ اسی بہانے سے وہ میری دکان میں آتی اور میں اس کا پرانا موبائل لے کر اسے نیا ڈبہ پیک موبائل دے دیتا۔ جب وہ پیسے دینے لگتی تو میں لینے سے انکار کر دیتا۔ بس اسی بہانے سے ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کا نام آسما تھا۔ میری روزانہ گھنٹوں اس کے ساتھ فون پر باتیں ہوتی۔ کچھ عرصے میں ہماری دوستی محبت میں بدل چکی تھی۔ اب تو وہ اکثر ساتھ گھومنے بھی جاتی تھی۔ وقت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ اب ہم ایک دوسرے کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن رہنے لگے۔ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی جب ایک شخص اس کے پارلر میں آتا اور دیر تک پارلر میں رہتا۔ اس دوران وہ مجھے بھی نظر انداز کر دیتی۔ پارلر ایک گھر کی شکل میں تھا۔ جب وہ آدمی جاتا تو وہ انتظار میں بیٹھی خواتین کو کہتی میرے شوہر تھے۔ ہم گھریلو مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ ایک دن جب ہم شہر کے ایک ہوٹل میں اکٹھے کھانا کھا رہے تھے تو میں نے خوب شکوہ کیا، آخر وہ شخص کون ہے؟ دیکھو آسما، جھوٹ کا سہارا نہیں چلے گا۔ اس بات کا مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا شوہر نہیں ہے۔ اگر تمہارا دوست ہے تو تم نے آج تک مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سچ سچ بتاؤ، اس سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ اس کے آتے ہی تم سب کچھ بھول جاتی ہو۔ اس نے آخر کیا جادو کر رکھا ہے تم پر؟ بتاؤ وہ کون سی مجبوری ہے اس شخص کو گھنٹوں پارلر میں بٹھائے رکھتی ہو؟ یہ بات میں نے کیا کہی کہ ایک دم سے وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی ہم دو بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے محنت مزدوری کر کے ہمیں پالا پوسا۔ میں میٹرک تک تعلیم حاصل کر پائی۔ بھائی لفنگے لڑکوں کا ساتھی بن گیا، سگریٹ پینے لگ گیا۔ گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ نشہ پورا کرنے کے لیے وہ چوری کرنے لگا۔ ایک دفعہ زمیندار کے ہاں چوری کرتا پکڑا گیا۔ زمیندار نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پیروی کرنے والا کوئی تھا نہیں، یوں بھائی کو جیل ہو گئی۔ ہم گھر میں اکیلے رہ گئے۔ پیٹ دو وقت کی روٹی مانگتا ہے، اس بھوک کو بھرنے کے لیے میں شاہراہ زندگی پر چل پڑی۔ دو وقت پیٹ بھرنے کے لیے میں ایک درندے کے دفتر جا پہنچی۔ اس نے میرا حسن اور جوانی دیکھ کر فوراً مجھے اپنے دفتر میں نوکری دے دی۔ دفتر میں میرا کام اس درندے آدمی کی خواہشات کی تکمیل کرنا تھا۔ بدلے میں ہمارے گھر کا چولہا جلنے لگا۔ میں غریب لڑکی سے انتہائی خوبصورت اور امیر لڑکی بن گئی، بلکہ عورت میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے بولنے کا سلیقہ آ گیا۔ روپیہ پیسہ انسان کی بہت سی کمزوریوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب میں بھی ایک معزز خاتون بن گئی۔ غربت کی مسافت کے دوران اس نے مجھ پر پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اب میں اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی کیونکہ اب وہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ملوانے لگا تھا۔ وہ اپنے بزنس ڈیل کو کامیاب کرنے کے لیے میرا غلط استعمال کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھ لیا۔ گندے کاموں سے مجھے نفرت ہو گئی۔ اس شخص سے جان چھڑوانے کے لیے میں تمہارے چھوٹے سے شہر میں آ گئی۔ اس نے یہاں بھی مجھے ڈھونڈ لیا۔ اس نے مجھے لالچ دے رکھا ہے کہ پارلر والی دکان خرید کر دے گا۔ یوں اس شخص نے مجھے اپنے چنگل میں پھنسا رکھا ہے۔ تم سے گزارش ہے کہ اس شخص سے میری جان چھڑواؤ۔ میں تا حیات تمہاری ممنوع رہوں گی۔
आसमा की दास्तान सुनकर मुझे भी तकलीफ हुई। मैंने वादा किया कि ये शख्स तुम्हारे साए के करीब भी नहीं आएगा। मेरा ताल्लुक 1-2 मुकामी सहाफ़ियों से था, उसके अलावा मेरा अपना शहर था, पूरा शहर मुझे जानता था। अब मैं उसकी आमद का इंतज़ार करने लगा। आखिर एक दिन वो आ ही गया। मैं बाज़ार से चंद आदमी लेकर पार्लर में पहुंच गया। उससे आने का मकसद पूछा। उसके बताने से आसमा रोने लगी और तमाम माजरा उसने कह डाला। ये सुनना था कि वो शख्स बहुत शर्मसार हो गया, हमारी मिन्नत समाजत करने लगा, पाँव पकड़कर माफ़िया मांगने लगा और आइंदा कभी इस शहर में ना आने की कस्में खाने लगा। इस बार मुझे माफ़ कर दो। यूँ उसको हमने माफ़ कर दिया। अगले दिन आसमा पार्लर खोलने के बजाय मेरी शॉप में आ गई। कुर्सी पे बैठने के बजाय मेरे पाँव में बैठ गई, ज़ारों कतार रोने लगी और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। अमजद, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी बनकर रहूँगी। यूँ एक दफ़ा फिर हम प्यार की राहों में रवाना हो गए। वक्त ने हम दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया। वो बाकायदा पार्लर आने लगी। अब तो हमारी रोज़ ईद होती। मैं जहाँ बुलाता, दिन हो या रात, वो आ जाती। अक्सर हमारी रातें शहर के होटल में गुजरने लगी। खुशियों के नगर में आबाद हुए थोड़े ही दिन हुए थे कि किसी की नज़र बद ने पीछा करना शुरू कर दिया। खुशियों को किसी की नज़र लग गई, परेशानियों को हमारे मोहल्ले का पता चल गया। हमारी हसीन रातों को चांद ग्रहण ने आ घिरा। उस बाजार में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी। मालिक रोज़ाना आते जाते उसे देखता था। वो लखपति आदमी था। उसने जुर्रत करके सुबह काम पर जाने के लिए उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी, जो उसने कबूल कर ली। वो उसको पार्लर से थोड़ा दूर छोड़कर चला गया। शाम को लेने भी आया तो वो रोज़ाना उसी के साथ गाड़ी पर आती जाती। अब तो उसने मुझ पर भी तवज्जो देना कम कर दी। मेरे एहसान भी उसको भूलने लगे। अब तो पार्लर भी अक्सर बंद रहता। पूछने पर पता चलता कि शहर से बाहर अपने अजीज़ों के यहाँ गई हुई है। जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि वो उस गाड़ी वाले शख्स के साथ इस्लामाबाद और मरी की सैर को जाती हैं। इस्लामाबाद से ख़रीदारी करती। अब तो उसकी 5 उंगलियां घी में थीं। मुझ पर एहसान करती। कभी कभार वो मुझे फ़ोन कर देती। एक वो वक्त था कि सुबह पार्लर पर आते और जाते वक्त वो मुझे सलाम करके जाती। अब हफ्तों बाद ही मुलाकात हो पाती, वो भी इंतहाई उजलत में। अब उसके रख रखाव में नवाबों जैसी अदाएँ आ चुकी थीं। यह हालात मेरी बर्दाश्त से बाहर थे। उसकी कुर्बत तो बहुत दूर की बात थी। अब तो मैं उसकी शक्ल देखने को भी तरसता था। अब उससे इंतकाम लेने की ठान ली थी। मैं उसकी राहों में अपनी आंखें बिछाने लगा। जितनी मुझसे नज़रें चुराती, मैं उतना ही दीवानगी का मुजाहरा करता। पूरा हफ्ता मैं उसकी आवभगत में लगा रहा। आखिर मैं उसको लाहौर ले जाने के लिए कायल करने में कामयाब हो गया। लाहौर में मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त रहता था, जिसके ज़िम्मे मैंने लगाया कि वो किसी होटल में कमरे का इंतज़ाम कर दे। मियाँ बीवी ने लाहौर आना है और वहाँ मज़ारों पर जाना है। मेरा वहाँ होटल में प्रोग्राम ये था कि उसके साथ जिनसी हवस की प्यास बुझाऊंगा। मैंने एक कैमरे का इंतज़ाम किया कि उसकी फ़िल्में बनाऊंगा और ब्लैकमेल करके उसको अपने ताबे रखूंगा। इससे मैंने अपने दोस्त को लाइल्म रखा। हम 10 बजे शहर से निकले और तकरीबन 1 बजे लाहौर पहुँचे और वहीं अड्डे पर मेरा दोस्त मेरा मुंतज़िर था। रिक्शा लिया और एक होटल में चले गए, जहाँ कमरा पहले ही बुक था। मैंने कैमरे को कमरे में एक ऐसी जगह रखा जहाँ से उसको पता ना चल सका। पहले तो वो इनकार करती रही, मगर फिर मेरे बहुत इसरार करने पर उसने अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दिया और फिर हम दुनिया और माफिया से बेखबर हो गए। 7 बजे अपने दोस्त को बुलाया और वो हमें अड्डे तक छोड़ आया और यूँ हम फिर वापस घर को रवाना हो गए। रास्ते में मैंने उसे फ़िल्म के बारे में बताया। लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं इसको डिलीट कर दूँगा, कैमरा मेरा ज़ाती है। ये सुनकर वक्ती तौर पे उसका रंग मुतगैर हो गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और हम दीगर बातों में मशगूल हो गए। अब उसने अपना पैंतरा बदला। अमजद, मैं तुम्हारी ही रहूँगी। मैं दिलो जान से तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने कभी तुमसे अपनी कोई चीज़ नहीं छुपाई। जो तुम तस्वीर और फिल्में बना रहे हो, आखिर तुमने इन तस्वीर का क्या करना है? फिर वो कहने लगी कि तुमको एक बात बताऊँ, तुम्हारा वो दोस्त मुझे बहुत प्यार भरी नज़रों से देखता रहा। अब जो उसके साथ होटल में गए तो तुम्हें बिठाकर वो मुझसे प्यार भरी बातें करता रहा। उसने तुम्हारी बहुत सी बुराइयां की और ये भी बताया कि होटल का किराया और रिक्शे का किराया भी उसी ने दिया है, और ये भी कहा कि जो आदमी होटल और रिक्शे का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तुम्हें कैसे खुश रखेगा। मैं यहाँ एक फैक्ट्री का मैनेजर हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, तुम्हारा अदना गुलाम बनकर रहूँगा। मेरे हाथ छूने की भी कोशिश की, मगर मैंने मुश्किल से अपना हाथ छुड़वाया।
जो कुछ तुमने बताया है क्या ये वाकई सच है? हाँ अमजद, ये बिल्कुल सच है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, बाद में तुम्हें सुनाऊंगी। ये सुनना था कि मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैंने चाहा कि अभी लाहौर वापस जाकर अपने दोस्त की जान ले लूं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू किया, फिर बड़े ठंडे मिजाज से उसको फ़ोन किया, खूब उसकी बेइज्जती की। मैंने कहा कि तुमने मुझे इसीलिए लाहौर बुलाया था कि तुम मेरी बीवी से इजहार मोहब्बत करो। क्या तुम अब दोस्त कहलाने के काबिल हो? मेरी बीवी की इज्जत से खेलना चाहते थे? तुम्हारे करतूत और जज्बात का इजहार आसमां ने रिकॉर्ड कर लिया है। तुम इतने घटिया इंसान हो, ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं तो तुम्हें भाइयों की तरह अजीज समझता था। कितनी दफ़ा तुम मेरे घर आए, मैंने तमाम घर वालों से भाई की हैसियत से तुम्हारा तारुफ करवाया। मैंने तुम पर एतबार किया, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। लानत है तुम्हारी दोस्ती पर। आइंदा खबरदार जो तुमने मुझे कभी फ़ोन किया या तुम मेरे घर आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अल्फाज सुनते ही नासिर हैरान और परेशान हो गया। वो तो शर्म से डूब मरने लगा। नासिर ने हल्फिया कहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मगर ये बात ज़रूर की कि तुम मेरे दोस्त अमजद की जो भी लगती हो, मेरे लिए एक बहन का दर्जा रखती हो। मेरे लिए कोई भी हुक्म हो तो मैं हाजिर हूँ। अमजद ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुमसे बेवफाई करे तो मुझे ज़रूर बताना। मैं अमजद को राह रास्त पर लाऊंगा। वो हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुम कह रहे हो कि उसके पास ये सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, तो ठीक है, मैं जुमे को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सब घर वालों के सामने मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनाना। अगर मैंने ये सब कुछ कहा होगा जो कि तुम्हारी बीवी कह रही है, तो मैं सज़ा का हकदार हूँगा। अगर तुम्हारी बीवी के पास रिकॉर्डिंग ना हुई तो फिर मैं तुम्हारे तमाम घर वालों को बता दूंगा कि तुम जुमे के दिन लाहौर होटल में क्या गुल खिला रहे थे। ये सुनना था कि मेरे तो आसान खता हो गए। अगर मेरे दोस्त ने यहाँ आकर सब कुछ बता दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। बीवी सुनेगी तो क्या कहेगी? यकीनन मेरा घर उजड़ जाएगा। मैंने फ़ौरन अपने दोस्त नासिर को फ़ोन किया, अपने अल्फाजों की माफ़ी मांगी। मैंने आसमां से रिकॉर्डिंग मांगी तो वो साफ मुकर गई। बोली, तुमने मुझे बर्बाद किया, मेरी फिल्में बनाई, मैंने जोश के बजाय होश से काम लिया। अब मैंने तुम्हारी बर्बादी का इंतज़ाम कर लिया है। घर में जवान खूबसूरत बीवी थी, तुम्हारे 2 मासूम बच्चे थे। तुम्हें उन पर ज़रा भी तरस न आया? आखिर मैं भी किसी की बेटी हूँ। अगर मेरे घर वाले तुम्हारे करतूत सुनेंगे तो वो मुझे किस नज़रों से देखेंगे? तुम इश्क में किस हद तक गिर गए हो? क्या पूरे जहान को अपने जैसा बेवकूफ़ समझते हो? अब अपना घर उजड़ने लगा है तो परेशान हो गए हो? मर्द बनो और हालात का मुकाबला करो। ये जवाब सुनकर ना मैं जी सकता था ना मैं मर सकता था। नासिर की बड़ी मिन्नतें की कि तुम मेरे घर मत आना, मेरा घर उजड़ जाएगा, मैं माशरे में बदनाम हो जाऊँगा। अमजद, इसका जवाब अब तुम दो कि तुमने भाई जैसे 2 मुकद्दस रिश्तों पर तोहमत क्यों लगाई। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हर हाल में तस्दीक करूंगा। तुम भी करो। अगर मुझ में कोई एक मामूली सा जुर्म भी साबित हो जाए तो मुझे वहीं मार देना। बहरहाल मेरी लाख मिन्नत समाजत के बावजूद नासिर जुमे को हमारे घर आ गया। सब घर वालों की मौजूदगी में लाहौर में गुजरे एक एक लम्हे की बात बता दी। नासिर ने मेरी सब करतूत बताई, कैसे मैं किसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर होटल में लेकर गया। गर्ज सब घर वालों को हकीकत मालूम हो गई थी। नासिर मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ कर चला गया। बकिया रात मेरे सब घर वालों ने क्या सलूक किया ये मैं ही जानता हूँ। मेरे वालिद साहब का रो रो कर बुरा हाल था, वो तो मुझे मारने पर तुल गए। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके उनको ठंडा किया। अगले दिन मेरी बीवी अपने दोनों बेटों को लेकर मैके चली गई। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की कि आइंदा हर किस्म के गुनाहों से तौबा की, मगर वो टस से मस न हुई और चली गई। फिर मैंने सोचा कि इस बारे में आसमां से बात करता हूँ, वो मेरे घर आकर झूठी गवाही दे कि हमारा कोई चक्कर नहीं है। मेरे दोस्त ने सब झूठ बोला है, मगर अगले रोज़ जब मैं दुकान पर गया तो मुझे पता चला कि आसमां भी वो पार्लर छोड़कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। मैके जाते ही मेरी बीवी ने अदालत में खुला का दावा कर दिया। मुझे आज नोटिस मिला है और मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। कुछ दिनों में ही अदालत के ज़रिए हमारी तलाक हो गई और मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। आज मैं अकेला तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कोई भी मेरा अपना नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जिसकी वजह से आप किसी से नज़रें मिलाने के काबिल भी न रहें। आज मैं अपने बच्चों से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। अल्लाह से दुआ है कि वो मेरी गलतियों पर पर्दा डाले और मुझे सुकून दे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।